Good morning, students of class 6. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 1 of your part 1 section C. Students, there were a lot of confusions due to book. So now all confusion are over. We have to study with the same book which you all are having. I think this is the book which is shown in the video. जो बुक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वही बुक आप लोग के पास है. सो वी विल स्टार्ट विथ द सेम बुक. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज डिटर्मिनर्स of part 1 section C. Okay, so we will start with the first chapter, that is determiners. So children, what is determiners? So determiners are words which identify or specify a noun in some way and it precedes noun. Determiners वो word हैं जो identify करते हैं noun को, okay, in some way. और ये डिटर्मिनर्स जो है वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं. इट प्रीसीड्स नाउन. सो डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर इज गिवन हियर. डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू फिक्स और डिफाइन देम. नाउन्स के पहले आते हैं जो कि नाउन्स को फिक्स करते हैं और डिफाइन करते हैं कि वो नाउन क्या है, ओके, किस टाइप का नाउन है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ड फिक्सर्स बिकॉज दे फिक्स द मीनिंग एंड द नाउन्स that are placed after them. They are also known as word fixer. ये word fixer इसलिए इनको कहते हैं because they fix the meaning of the noun. जो noun का meaning है उसे वो fix करते हैं that are placed after them. और noun जो है वो हमेशा determiners के बाद आएगा. Okay, example are given here. This is my book. So this is my book. This is also a determiner and my is also determiner. Book is noun. Okay, second, I saw a one-eyed man. I saw a one-eyed man. Is determiner. He will go by the Rajdhani Express. So the here article is determiner. ये बता रहा है कि he will go by the Rajdhani Express. Rajdhani Express is noun. It comes before noun. So determiners डिटरमाइन अ नाउन, पॉइंट्स इट आउट. ओके, डिटरमिनर जो होता है वो पॉइंट करता है नाउन्स को. ओके, एंड डिटरमिनर्स टेल्स विच वन. डिटरमिनर्स बताता है कौन सा. ओके, सो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स. हियर काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स आर गिवन. फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स ए एंड द. सेकंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, दैट इज द, these, those, etc. Possessive determiners, my, our, your, his, her, their, its, etc. Numeral determiners, one, two, second, both, etc. Fifth is quantitative determiners, some, much, more, less, etc. And sixth one is interrogative determiners, which, whose, what, etc. So let us start with the first one, that is articles. So articles are divided in two categories. You all must be knowing. आर्टिकल्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. एक है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट. ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज द डेफिनिट आर्टिकल. ओके, सो they are identified. A and N. Let us study about A and N. We will study about A and N. So they are indefinite because they do not refer to any particular person or thing. A और N indefinite क्यों है? Because they don't refer to any particular person or thing. किसी एक person या particular thing के बारे में हम लोग इसमें बात नहीं करते. The person or thing is not specifically defined. जो person और thing है वो किसी के बारे में specifically defined नहीं किया गया है. So it remains undefinite. इसलिए वो undefinite रहता है. Okay, examples. I saw a girl in the park. I saw a girl in the park. A is article here, but which girl is not mentioned. So a girl. So girl is not definite. So it is any girl
एनी गर्ल वी कैन रिफर, एनी गर्ल के बारे में बात हो रही है, सो इट इज़ नॉट डेफिनेट, सो इट इज़ इनडेफिनेट. अजय सेड ही वांटेड एन अम्ब्रेला. एन अम्ब्रेला, तो कौन सा अम्ब्रेला चाहिए वो डेफिनेट नहीं है. एन अम्ब्रेला, कोई सा भी, कोई भी अम्ब्रेला उसे चाहिए. ओके, सो ये इनडेफिनेट है. और डेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स. इट इज़ डिफाइंड बिकॉज इट इज़ यूज टू रिफर टू अ पार्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग. और जो द होता है वो हमारा डेफिनेट होता है क्योंकि किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. ओके, एग्जाम्पल, द लॉयर अपील टू द जज. द लॉयर अपील टू द जज, यहाँ पे द जो है वो पार्टिकुलर पर्सन के बारे में है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. जब हम सन की बात करें तो सन के बारे में पता है कि हाँ एक सन है जिसके बारे में हम बात करें, पर्टिकुलर है. ओके, द जज इन द कोर्ट वेस्ट, द पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सो दिस ऑल आर डेफिनेट आर्टिकल. नाउ यूसेज ऑफ द का यूसेज कैसे होता है. द इज ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग, अ नेशन, अ पार्टी और अ कम्युनिटी. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है द के बारे में. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज बिफोर अ नाउन व्हेनेवर वी वांट टू मेक इट पार्टिकुलर. जब भी किसी नाउन को हम लोग पार्टिकुलराइज करते हैं तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं. एग्जाम्पल, द ट्रेन, द बुक्स, द इंफॉर्मेशन. ओके, ऐसे में हमारा द का उस चीज़ में हम लोग द का यूज़ करते हैं. वी यूज़ द विथ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन. आई गॉट अ कैमरा एंड अ वॉच एज अ बर्थडे प्रेजेंट. इस टाइप से होता है. द प्रिंसिपल इज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल. द प्रिंसिपल. सो हियर अ नेशन, अ पार्टी और अ कम्युनिटी. एग्जाम्पल्स, द फ्रेंच, द कम्युनिस्ट, द सिक्स. ठीक है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं. अ गल्फ, अ बे, अ कैनल, अ रिवर, एन ओशन, अ सी. ओके, इस ऑल के बारे में के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं. द रेंज ऑफ माउंटेन्स, एग्जाम्पल्स, एल्प्स, द हिमालयाज. गल्फ में क्या है, द पर्सियन गल्फ. बे हो जाता है द बे ऑफ बंगाल. रिवर जब हम बात करें तो कोई भी रिवर, सतलज रिवर, गंगा रिवर, गोमती रिवर, एनीथिंग वी कैन राइट. ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो. सी के बारे में हो तो द रेड सी. सो वी यूज़ द बिफोर रिवर्स. जब हम रिवर्स की बात करते हैं तब द यूज़ करते हैं. सीज एंड ओशंस के बारे में बात होती है तब देन ऑल्सो वी यूज़ द. माउंटेन रेंजेस, विथ माउंटेन रेंजेस वी यूज द. होली बुक्स, द गीता, द कुरान. ओके, ट्रेन्स एंड शिप्स. जब ट्रेन्स की बात होती है जैसे शताब्दी एक्सप्रेस. शिप्स के बारे में होती है तब भी हम लोग द टाइटैनिक हुआ तो फिर हम लोग उसको द का यूज़ करते हैं. न्यूज़पेपर्स, द इंडियन एक्सप्रेस. ओके, when we talk about no well known buildings, the Red Fort, the Lotus Temple, okay, the Taj Mahal, the whole family. जब हम किसी फैमिलीज के बारे में द गांधी, जब होल फैमिली, द गांधीज, द खान्स. ओके, इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं. ओके, द हिमालयाज. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में जब बात करते हैं देन ऑल्सो वी यूज़ द अंडमान्स, द सोलोमन आइलैंड्स. और न्यूज़पेपर के बारे में जब होती है तो मैगजीन्स और फेमस बुक, ये सब में भी हम लोग यूज़ करते हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल ज्योग्राफिक, द वेदास. और पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बात होती है तभी पार्लियामेंट हाउस और कम्युनिटी सेंटर. होटल्स, द अशोका होटल, द स्प्रिंग रेस्टोरेंट. तो ये सब के बारे में जब बातें होती है देन यू यूज़ द. नाउ चिल्ड्रन, डेमोन्स्ट्रेटिव. सेकेंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव determiners. So demonstrative determiners. So demonstrative pronouns like this, that, these, those, etc. work as demonstrative determiners when used before noun to demonstrate them. तो demonstrative determiners में क्या आएगा, this, that, these and those. ओके, जब ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट नाउन्स के बारे में जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसके पहले आता है. ओके, दिस बुक इज़ न्यू, दैट कार इज़ ओल्ड, दिस बॉयज बिलोंग्स टू केरला, दोज गर्ल्स सिंग वेल. तो दिस, दीज, दैट एंड दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ओके, and this and that can be used before, this and that can be used before uncountable nouns.
ओके, अनकाउंटेबल्स जो होता है उसके पहले दिस और दैट का यूज़ होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल दिस फूड इज़ नॉट फिट टू बी ईटन। ओके, काउंटेबल नाउन्स के पहले दिस एंड दैट कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल ऑल्सो। ओके, दिस जो होता है वो दिस इज रिफर टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स क्लोज बाय, एंड दोस क्लोज बाय जो होता है उसके लिए दिस यूज करते हैं। एंड दिस इज द this is the singular form and these is plural form. Okay, plural nouns. That is also a singular and those are plural form. Okay, those we can use in plural nouns के पहले हम लोग those का यूज करते हैं. Okay children, now next one is possessive determiners. So here is possessive determiners. Words like my, your, her, our, their, etc. work as possessive determiners when used before nouns. They show relationship or possessions. Okay. So words like my, जब हम my के बारे में बात करते हैं तो that is mine. Okay. So words like mine, योर, हर, अवर, देयर, ये सब हमारा पोजेसिव है, ये पोजेशन शो करता है. ओके, सो दिस ऑल शोज पोजेशन. दे आर कॉल्ड पोजेसिव्स बिकॉज दे पोजेसेस द नाउन्स दैट फॉलो देम. ओके, वो पोजेस करता है उस नाउन को जो फॉलो करता है, इसलिए दे आर नोन एज पोजेसिव डिटर्मिनर्स. पोजेसिव्स कैन बी यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. पोजेसिव डिटर्मिनर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के पहले यूज होता है. ओके, my book, my books, your purse, your purses. Okay, this is my book. Our school is closed today. Okay, so both they can be used before the countables as well as the uncountables. काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले यूज होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले यूज होता है. ओके, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के पहले यूज होता है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ के पहले यूज होता है. ऑलराइट, सो नाउ न्यूमरल डिटर्मिनर्स. न्यूमरल डिनोट्स नंबर. ओके, जब न्यूमरल की बात हो रही है तो नंबर. सो सच डिटर्मिनर्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नंबरिंग होता है नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिनोट्स. ओके, आई हैव अ कार, दीज आर 4 इंटेलिजेंट बॉयज इन द टीम. देयर आर 4 इंटेलिजेंट बॉयज इन द टीम. सो जब नंबर्स की बात हो रही है तो हमारा न्यूमरल डिटर्मिनर्स यूज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स व्हेन वी टॉक अबाउट quantity of objects. Okay, this determiner shows the quantity of object. The words like some, many, much, little, few, etc. belongs to this category. Examples: I have little money to spare. Okay, quantitative determiners tells us something about number or quantity. Okay, it tells something about number or quantity. Quantitative determiners like many and several suggest number. Many pen, several trees. Okay, इसमें many pens है तो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं. They are used with the countable nouns. Okay, then quantitative determiners like much and little suggest quantity. Much और little जो है वो quantity को suggest करता है. They are used with uncountable nouns. Okay, they are much, several and many are used with countables, and much and little is used with uncountables. Now some, any, determiners like some and any can be used with both the countable and uncountable nouns. Some books, any shirt, some tea, any bread. Okay, some books के बारे में बात कर रहे हैं तो countable और uncountables दोनों हो सकता है. any shirt, any bread, तो it is used with both countable and uncountable nouns. Okay, when we talk about some and any, some
इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, बट एनी इज यूज विथ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, एनी इज नॉर्मली यूज विथ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, and much and many. Much is used before the uncountable nouns. Much labor, much joy, and many is used before countables. Okay, in the plural number. many हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ होता है क्वांटिटी किसी चीज़ का, तब हम लोग many स्टूडेंट्स, many आर्टिस्ट इस तरह से बात करते हैं. पर जब हम मच की बात करते हैं, मच इज यूज बिफोर द अनकाउंटेबल्स. दैट इज ऑल्सो लार्ज क्वांटिटी. Okay, much labor, much joy. Little and few. Little, not much, hardly any. Little means not much, hardly any. ठीक है, little की जब बातें होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं, hardly any. It is used almost in negative sense. Little की बात जब होगी तो वो negative sense में यूज़ होता है. There was little support for the strike. Hardly any support. Okay. A little यूज़ होता है at least some. और लिटिल जब यूज़ करते हैं तो एट लीस्ट सम. ओके, और फ्यू की जब बातें होती है, जब फ्यू की बात होती है तभी यहीं पे है, नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नन. ओके, अब द टीवी चैनल इज़ नॉट गुड, इट शोज फ्यू गुड प्रोग्राम्स, मतलब ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर. ओके चिल्ड्रन, सो हियर एग्जांपल्स आर गिवन. द डिटरमिनर शोज द क्वांटिटी and examples are given here. Examples, I have a little money to spare. Little money मतलब ना के बराबर, मेरे पास बहुत कम मनी है. Okay, some boys are going abroad for this competition. Some boys are going abroad for this competition. Okay, कुछ बच्चे जा रहे हैं for the competition. Use some as in affirmative and any negative and interrogative sentence. Some का use affirmative में होता है, and as I have already said you just now, and in any negative and interrogative sentences. Examples, give me some milk. I have invited some friends. I don't have any pen. Do you have any problem? Okay, so some is used in affirmative and any negative and interrogative sentence. Okay, any का use interrogative और negative sentence में होता है. Use many and few with countable and much and little with uncountable. Many और few का use countable noun के साथ होता है, और little and with uncountable nouns. Okay, he has many or few books in his cupboard. He has many books or he has few books. There is much little sugar in the container. There is much sugar in the container also we can write there is little sugar in the container. Okay children, so this was the chapter number 1. This has been completed now. Now we will start with the there are some exercises. I will give you the PDF of the exercises. You have to solve PDF I have given. So see, look it carefully and note down in your notebook. Okay children, till then stay at home and be safe. Thank you.